Hello, hi everyone. So, good evening to every one of you. So, welcome to my Insta live session with celebrities. So, as I have given you update yesterday, that today we will have a live sessions with winner of Mission Dreams Miss India 2020, and she is Pratiksha. As you have already saw her on my live sessions before, that when she has won the title of Miss Glory Queen 2020, that too in Puri, and again she has won the title that is that is from India, that is the Mission Dreams Miss India 2020, which was a proud thing for our Rourkela, also for our Odisha also. So today I'm going to bring live Pratiksha on my sessions. So guys, I just want to request every one of you, just join my session as soon as it's possible, so that you can interact with her and we will have a lots of fun. So I just want to request every one of you, those who are excited, please join on my live sessions. Now I'm going to welcome Pratiksha on my session. So I have to invite her, and I just want to say, Pratiksha, if you are live now, if you're here, please join my sessions and please being here, and so that I can bring you live on my sessions. Okay, she's here. So now I'm going to welcome winner of Mission Dreams Miss India 2020 contest, that is Pratiksha, and also she is the winner of Miss Glory Queen 2020, which was held at Puri in January. So let's welcome her and we will have a lots of questions. Which is a proud moment for our Odisha also, for our Rourkela also. Hi Pratiksha, केमती अच्छा? Hi. First of all, ଆଉ କଣ କେମତି ଚାଲିଛି after winning this such a big title, which was a proud moment for our Rourkela also, for our Odisha also. ତମେ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ କହିଲେ ଚଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ କିଛି फिलहाल आसिया दिनରୁ इंटरव्यू ବି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର इंटरव्यू ମିଡିଆ ସବୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ମୋ ଦିନ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ନିହାତି ଭାବେ, ବିକଜ ଯାହା ହେଲେ ତମେ ଆମ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ ମଧ୍ୟ, ତ ନିହାତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବ, ବିକଜ ଗର୍ବିତ କରିଛ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ନେଇକି ବାହାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ସୋ ଇଜି, ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବହୁତ କିଛି ମେହନତ ପଡିଥିବ, ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିବ, ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ ପରେ ସେଇ ସକ୍ସେସ କୁ ପହଞ୍ଚିଥିବ ନିହାତି ଭାବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆଉ ତମଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକିନା ନା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଶିଖିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତମର ନିଆହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ବି ତମର ନଉଛି ଏଥିପାଇଁ, ବିକଜ ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଭେନ ମୁଁ ବି ତମଠୁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଭେନ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟୁ ଟମର୍ସ, ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଚିଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଲାଇନରେ ନା, ସେମାନେ ବି ନିହାତି ଭାବେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। So Pratiksha, please ତମ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ଆଗେ ତ ମାନେ ତମେ ବହୁତ ମାନେ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତମେ ସ୍କୋପ ଦଉଛ, ଆଉ ତମେ ମାନେ କହିବି ନା ଗ୍ରେଟ୍ ଗୋଇଂ ହେଲା। ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ବି ଥାଏ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବସ୍ ଏତିକି କହିବି କି ଲାଇକ୍ ହ୍ୟାଲୋ, ୟେସ୍ ୟେସ୍, ମୁଁ ଅଛି, ମତେ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଲାଇନ ରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି କହିବି କି ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର, କାହିଁକି ରିଜେକ୍ସନ ତ ବହୁତ ମିଳିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ, ଆଉ ହାର୍ଡୱାର୍କ, ଏଫର୍ଟସ, ଡିଟରମିନେସନ ସବୁ ଇକ୍ୱାଲି ଦରକାର, ଲେକିନ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ପେସେନ୍ସ। 3 years ୱେଟ୍ କରଲା ପରେ ଏଇଟା ଯାଇକି ମତେ ମିଳିଛି। ସୋ ନିହାତି ଭାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ କୁହ, କେମିତି କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କଣ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, କଣ ଭାବିଥିଲ, ଆଉ କେମିତି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲ, ଏତେ ବଡ କ୍ରାଉନ ଯେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସଜା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ବହୁତ ଭାରି ହଉଛି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମଠୁ ନିହାତି ଭାବେ ଶିଖିକିନା ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଆମର ଇୟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଗ୍ଲୋରି କ୍ୱିନ୍ ଟା ହେଲା, ତ ସେଇଟା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଥିଲା। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି वापस ସେ ଷ୍ଟେଟ ୟା ଲୋକାଲ କୁ ତ ମୁଁ ଆସି ପାରିନଥାନ୍ତି। ସୋ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଏମ୍ ଥିଲା କି ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଥିଲା, ନଭେମ୍ବରରୁ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ବଟ୍ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟର କଲି ଲାଇକ୍ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ। ତ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ ରେ ଆମର 15,000 ପ୍ଲସ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମାନେ ମିସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କଥା କହୁଛି। ଆମର ତ ମିସ୍, ମିସେସ୍ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା। ତ
तो मिस कैटेगरी रे 15,000 प्लस कंटेस्टेंट्स थिले। तो फर्स्ट फेज रे हमर थिला वोटिंग राउंड। तो वोटिंग राउंड रे सेति की कंटेस्टेंट मान को भितरु हमको आसिया थिला टॉप 50 रे। तो टॉप 50 रे जदि हमें आसी तांतु देन नेक्स्ट फेज को हमें जाई तांतु। सो सेइथरे फर्स्ट माने टिके टाइम लागिला अप्रैल मई तक आगे थिला कि लाइक वोटिंग अप्रैल मई तक ही लिमिटेड थिला। तो सेति पर्यंत माने धीरे 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 ऊपर को आसी टॉप 10 रे थिली तापरे टिके टॉप 20 को आसीगली। सेतरे 17,000 प्लस वोट्स थिला। सो नेक्स्ट फेज लगी क्वालिफाइड। नेक्स्ट फेज रे हमको कहले कि तुम स्टेट को रिप्रेजेंट करके हमको फोटोज पठाओ लाइक किछि भी क्रिएटिविटी तुम करि पारो। तो सेतरे फोटोज पठाओ सेतरे भी मार्क्स थिला। देन थर्ड थिला कि जदि हमें किछि सोशल वर्क करू जदि हमें किछि सोशल वर्क करूछु ताहले सोशल वर्क रो वीडियो फोटोज विथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमको पठाइला। तो तार भी गोटे मार्क्स थिला आउ सेटा भी गोटे सब कॉन्टेस्ट ब्यूटी विथ अ पर्पस। देन एतकी सब थिला ऑनलाइन रे। तापरे एई सब बेसिक्स प्लस से माने हमर सोशल मीडिया हैंडल भी चेक करूथले रेगुलर बेसिस रे लाइक केमती कोन चालीची समस्तंकर। तो सेई थ्रू सब माने देखा रेखा हेई कि लास्ट रे तापरे 31 टा फाइनलिस्ट ऑल ओवर इंडिया रो सिलेक्ट हेले। से मानकर फिनाले हला कोलकाता रे 16 17 और 18 टा हमर मेन फिनाले डेट थिला। तामाने यू आर द वन जे के सिलेक्टेड हेतला ओडिसा रो एंड फ्रॉम राउरकेला रो दैट इज प्रतीक्षा ना आउरी के थिले राउरकेला रो मु थिली बट ओडिसा रो हमर 4 जण थिले। जोड़ा रो गोटे झिया थिला देन बलांगीर रो गोटे झिया थिला आ भुवनेश्वर रो गोटे झिया। तो सेमाने So, किछि ओडिसा रो 4 जण पाइले अदरवाइज यू आर ओनली रनर अप ना सेमाने भी किछि पाइछंती टाइटल्स वगैरह ना तांकु ना एथरे एटा थिला लाइक सबु विनर माने जतकी भी फाइनलिस्ट अछंती काहे कि से माने एई पीरियड रे भी माने कोविड पीरियड रे से माने जाई छंती सेठी की तो सेडा समस्त स्पिरिट को देखि कि से माने सबु फाइनलिस्ट मान को क्राउन प्रोवाइड करै छंती। तो क्राउन से तो समस्त को निज पर्सनालिटी हिसाब रे गोटे गोटे सबटाइटल मिली छी। सो एग्जैक्टली हां ओडिसा को टोटल आसी छी कहया को गले 4टा सबटाइटल विथ वन मेन क्राउन। वाओ दैट्स यू मेन क्राउन वाज यू exactly na yeah I know that very proud of you literally proud of you so बहुत बढ़िया माने मॉडलिंग रे इच्छा केमती हला कि मो मॉडलिंग रे जिबे समस्त को डांस करे के इच्छा होए एक्टिंग करे के इच्छा होए मॉडलिंग इच्छा बट तमरो मॉडलिंग रे इंटरेस्ट केमती आसिला। देखो एमती तो माने मु बहुत थर कहि साची बहुत जगह रे कि मते सबु फील्ड एक्सप्लोर करिया माने बहुत भल लागे सबु फील्ड नॉट ओनली डांस सिंगिंग एक्टिंग बल्कि जते भी इवेंट स्पोर्ट्स हे जाऊ या लीडरशिप हे जाऊ जहां भी सबु फील्ड को एक्सप्लोर करियार अछि। सो मॉडलिंग विषय एते भाबी नथली क्लास 11 रे मते स्कूल तरफ चांस मिलिथिला रिप्रेजेंट करिया को स्कूल को। तो सेठी लाइक एमती माने तापरे धीरे 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 शोज करली लोकल रे। तो मैं भी देखी छ केतेटा शोज रे। सो माने हाँ तो माने केतेटा जगह रे एमती हेई छी लाइक मु कहूनी कि जे विन करी छी से डिजर्विंग नथिला बट इक्वली डिजर्विंग हमें भी थिलो बट सेतकी स्कोप मिली पारिनी। सो से भितर गोटे तो भितरे गोटे ना थिला कि नाइ प्रूव करियार अछि समस्त को एग्जैक्टली वेरी सो माने गोटे जिंस है ना waiting for the scope to come we should create it तो सेही जिंसटा तमे कहला कि मु वेट करियो मते कि गोटे ओडिसा रे स्कोप दो मु करबी ना ताडू कहला मु निजे स्ट्रगल करके देखि कोडी कोन मिलुची निजे ना को मु आगे प्रूफ करे कि मु अछि मो भीतर टैलेंट अछि मते नियो मु डिजर्विंग बस सेही जिंसटा तमे प्रूफ कर लोकन के लोक माने से जिंसटा जानि पारु नथिले तो वर्तमान जानिली कि ना शी इज टैलेंट शी इज डिजर्विंग इंडिया रे प्रूफ करके आछि माने निहाती ता भीतर किछि ना किछि प्रतिभा अछि। Yes, maybe I'm not 100%, but yes, I'm 70% for sure. सेटा तो हे परिवा में तो बहुत बढ़िया जिंस प्रतीक्षा तमे करिजो कि स्कोप को वेट करबो के तुमको दबो के अचीव करू मु आगु को बढ़ी भी ताडू भलो मु निज मेहनत रे करी कि ना ट्राई करे नै भी मु अचीव करि पारे तो जिंसटा तो फॉर दैट रीजन ना आई वुड जस्ट गिव अ हैंड्स अप टू यू बिकॉज़ प्राउड ऑफ यू ते जिंसटा तमे भाबिलो मु बहुत देखी छी तुमको कि तमे बहुत स्ट्रगल करिछो बहुत मेहनत करिछो
सब इवेंट रे ना केबे माने गोटे जिंस था ना ईगो सेटा तुम भीतर नहीं जोति पाए तमे आज सक्सेस रे पहुंची लोक माने तुमको सेते भी भल पांदे बिकॉज़ तमे समस्त सहित फ्रेंडली रुह जेते तुमको कोन शो मिलो ना तमे केबे कहनी कि ना एटा छोटो छोटा मु करबी ये करबी से जिंस तुम भीतर नहीं नाई मु करबी मु सिखिबी निजे लीड करे पछे कि निजे सिखाई एवं निजे करे कि मु करबी मते इच्छा अछि जो थ्रू तुम बहुत जिन शिखिल और शिखिल बोली सेटा जाइक ना इंडिया रे प्रूफ करके आसलो जोटा कि एबे तुम अचीव करके प्रूफ कलो कि मु हेई परिबी सो फॉर दैट रीजन ना I would like to heartily give you lots of wishes from my side, seriously, and proud of Thank you you. for. So, आउ किछि Thank पचारिबा को चाहेबे तो एते जिंस ते अचीव करछो तो आउ किछि तमे ड्रीम रखिछो आगु करिया पई कि माने निजर ड्रीम प्रोजेक्ट करिया पई या फिर वेट करछो किछि मिलिबो माने एंते किछि भाबिछो कि ना सेमती माने लाइक प्रोजेक्ट सेमती तो माने मॉडलिंग प्रोजेक्ट से एक्टिंग रो तो सेगुडा सब ऑफर आसुची तार मो लागि एबे फिलहाल से सब लागि मोर किछि प्लान नाही एबे मोर एटा मोटिव अछि लाइक नेक्स्ट ईयर 2021 रे मते नॉट ओनली फ्रॉम राउरकेला बट ओडिसा रु मते पठार अछि खास करी मिस्टर और मिस लागि हमकु सेडा मेन क्राउन दरकार हमर एठी वाओ बहुत टैलेंट अछंती बट तांकु से प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर स्कोप मिली पारुनी तो मोडू जेते बनी पारिबो मु तांकु माने गाइड करबी माने करिया चेष्टा करबी आ जो माने आई मीन हार्टली डेडिकेटेड अछंती एमती नुह कि हमकु दरकार हमें जीवु ना तमे जीतिला परे करिबो कोन माने तार यूज केमती करिबो तमे सेडा जे एक्चुअली डेडिकेटेड थिबो ना सी ता पाखरे ई क्वेश्चन रा आंसर थिबो सो ताकू मते हेल्प करार अछि सेडी पहुंचिया लगी आउ नेक्स्ट ईयर माने जते बेले मु सेडू मो क्राउन आउ काहबो पास करूथिबी तो मु चाहूची कि लाइक हम ओडिसा नु के थाउ तांको ही पास करे तो फिलहाल सेडा ही अछि कि लाइक देखियार अछि टिके चालू कि हमर अछंती एडी भलो ओडिसा रे आ राउरकेला पई जदी मु किछि करि परिबी फील्ड पई ताले सेति म लागि बहुत माने बड़ जिंस बहुत बढ़िया प्राउड ऑफ यू सो मु एटी जो व्यूअर्स माने देखुछन तांको भी कहबी कि प्रतीक्षा इज अ वेरी इंस्पायरिंग गर्ल शी इज वेरी टैलेंटेड एंड शी इज हार्ड वर्किंग आल्सो प्लीज सपोर्ट हर एंड गिव लॉट्स ऑफ लव टू हर बिकॉज ता भीतर बहुत पोटेंशियल अछि जोति पे से पहुंची एंड द थिंग इज दैट कि से बहुत मेहनत करिछि से केबे का पर डिपेंडेंट नहीं तमर से जिंसटा बहुत भल लागे मते कि तुम निजे क्रिएट करछ कि मते के चांस दे दो तुम जा भी स्कोप मिलुछि तमे करिछ आउ सिखिछ तापर रिप्रेजेंट कलो आउ गोटे जिनस तुम भीतर बहुत भल अच्छी कि तमें ना समस्त को रेस्पेक्ट कर सेटा मते बहुत भल लगे कि तमें जेते भी स्टेज को जाओ ऊपर को जाओ बट तमें रेस्पेक्ट कर समस्त को से जिनसरा बोलना जोत पई तमरो किछटा टेस्ट नि आइथला आई थिंक मिस इंडिया रे जोतिर तुम पोस्ट भी करिछ जहाँ भी वर्क करिछ ये करछ तुम सेटे भी देखछन कि सर रेस्पेक्ट केमि के दोछ लोक को बिहेव केमि को जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट किछि जण थांदी ना जेमते कि भूली जानती नाई मु एते ऊपर गलणी मु कोन गोटे ताको जानिबे से जिनसटा तम भीतर नाई तो जो भल पाइबाटा अच्छी जो स्माइलटा अच्छी जो लोकों को देखे कि जिते सीनियर हो जिते ये तो जिते तमे स्टार हे जाओ पछे तमे सेमान को मने रखुछ सेटा बहुत भलो जिंस तम भीतर अछि सो फॉर दैट रीजन आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई गिव यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड आल्सो लॉट्स ऑफ मु बहुत थोड़ा कह सलेन बिकॉज़ मु हार्टली से जिंसटा तम पे आसुची लिटरली तो व्यूअर्स मानकर बहुत भल पाइबा आसीबो तो मो तरफ आ गोटे क्वेश्चंस तम पे रहइबो कि मॉडलिंग रहला एक्टिंग रहला ताकू छाड़ी के तुमको आ कौन भल लगे कौन करिया पे ताकू छाड़ी की एबे एबे मु जानी कोन पाई लाइक 2 इयर्स हबो ट्रैवलिंग रो बहुत माने से कीड़ा गोटे पसिक अछि सेटा ऑब्वियस अछि कि कोडे जाई होनी माने 12 थिला तापरे बे एई वर्ष किछि प्लानिंग करला बेल को कोविड हे गला ट्रैवलिंग रो बहुत माने इच्छा होची किछि करिया लागि सेथरे अलग अलग जागे एक्सप्लोर करिया को देन ताकू छाड़ी की आगुरु थिला माने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग रो तो आगुरु ही थिला लाइक 11 12 टाइम रु सेटा डेवलप हैला धीरे धीरे एई टाइम रे आ मु एतकी कहि परिबी कि मु मोर जेतकी बेबे शोज करिछि सेथरे जहा भी मोर माने स्टाइलिंग अछि सेडा सब मु निजे करछि प्लस मोर जेतकी भी ड्रेस अछि सेगुडा मु निजे ही डिजाइन करछि कोडा भी माने वेरी बाहर नाइस मोर मगाए तो मु निजे डिजाइन करे आ मो मम्मा सेडा को बनै दियंती तो मते बाहर को काढी दिबा को पड़ेनी तो मम्मा गोटे डिजाइनर ता माने बस बस कैन यू शो मोर मी योर मॉम प्लीज मु तम मॉम को देखिया को चाहे एवं हम व्यूअर्स को भी तम मॉम को देखिया चाहे कि से दुनिया तम व्यक्तिंगर
झील सी डॉटर जी के एते सुंदर अचीव करछन तो प्लीज 2 मिनिट्स पे तंग मम को फेस टिके देखै परिबो हम व्यूअर्स माने भी जानते तुम मम को इवन से सब आले दे सलनी ओटीवी रे एंड सब चैनल रे भी तंको देखि सलन लोक बट वर्तमान लाइव रे भी जो माने देखुछन ना से भी देखियो चाहिबे नियाती भाबे तम मम को बिकॉज़ मम को सपोर्ट न रथिले ना तमे एठी पहुंची पार न थांदा मम को बहुत एग्जैक्टली सपोर्ट अछि बहुत ब्लेसिंग्स अछि जोति पे तमे एते बड़ क्राउन को अचीव कलो सो कैन यू प्लीज शो मी योर मम या कारण मु 2 भी तांको मिनिट या श्योर ऑफ कोर्स मम्मी आसिला तक ना मु किछि जिंस कहया को चाहूची लाइक हमर हां किछि न कहले भी मम्मी चलिबो किछि असुविधा नहीं तांको ना ना आई थिंक सेपटे आई नो अच्छा से ନାଇଁ ମମି रोसे ଟିକେ करछन नाइ ହସୁଥିଲି ତ ओके ନା फाइन ମମି किछि କହୁଛି असुविधा नहीं ଥଣ୍ଡାରେ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଏ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚକ୍କରରେ ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ତ ଚलो ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବି କରିଦେବି ସିଏ ବି ଟିକେ नहीं एग्जैक्टली सत कथा किछि असुविधा नहीं मु बुझी पारछि किछि असुविधा नहीं आंटी को आपण माने फोटोज देखि पारिबे इवन प्रतीक्षा को सहित बहुत सारा फोटोज क्लिक थो सेतरी भी देखि पारिबे किछि असुविधा नहीं आ जेते देह ये छि बिकॉज़ एबे ठंडा भी बहुत जोरे पछे सो ओके नो प्रॉब्लम सो तमे टिल नो एबे केते अचीवमेंट्स करि सलणी तमरो निहाती भाबे से अचीवमेंट्स गुडा को थिबो प्राइजेस गुडा को तो जदी तुमे खराब ना भाबो प्लीज गोटे देखै परिबो झलक तम प्राइज गुडा करो मॉडलिंग रे ସବୁ ଗୁଡା जहाँ भी ସବୁ ନେଇ ଆସିବି ना ना तमे सजै थिबो गोटे जगह रे ना तो अच्छी सेमदे किछि डेकोरेटेड हेकी ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି ବେଟର ରହିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ ओके फाइन सो प्रतीक्षा मो सहित वर्तमान लाइव रे अछंती एंड बहुत सारा इंटरेक्शन भी करूछंती आपण माने देखुछन शी इज वेरी टैलेंटेड शी इज अ प्राइड फॉर आवर इंडिया एंड शी इज प्राइड फॉर आवर ओडिसा आल्सो सो समस्तंकर टेक्स्ट भी आछि तो हम टिके देखि दे वर्तमान हाय प्रतीक्षा से प्रतीक्षा वर्तमान ओ माय गॉड सच अ ब्यूटीफुल क्राउड सो कौन कुछ जो भी बसंती का खून है प्रतीक्षा दीदी यस एग्जैक्टली राउरकेला की खून है बसंती क्या राउरकेला पूरा राउरकेला की वो जान है गुड नाइट सिस्टर ओके हमें देखुछु आंटी को वेरी नाइस थैंक यू सो मच रिशु मैम जो भी बसंती का खून है चलता है प्रतीक्षा दीदी में यस एग्जैक्टली डेली देखुछु वेरी नाइस नहीं ऑब्वियसली डेली समस्त देखछन किछि किछि व्यूअर्स अछन जो माने देखि नाथि तो सेति पे हमें चाहतलु कि देखंतु बिकॉज़ लाइव पोस्ट भी होबो सो दैट जानिबे एंड बहुत जनकर भल पाइबा मिलुछ प्रतीक्षा को पे सो थैंक यू सो मच एवरीवन who are giving their lots of love towards प्रतीक्षा सो बहुत जनकर टेक्स्ट आस्तिला सेमानकर मु देखि सलेनी समस्त बहुत सारा भल पाइबा दिचंती प्रतीक्षा को पे तो प्रतीक्षा प्लीज सेमान को थरे थैंक यू कह दियो समस्त थैंक यू सो कांग्रेचुलेट मच एते सारा सपोर्ट एते सारा भल पाया लगी समस्त को बहुत बहुत थैंक्स या एग्जैक्टली सो एते सुंदर क्राउन टी भी मु देखि सलेनी बहुत सुंदर हे क्राउन टी एते तम मुंडे सजा हेते अच्छा तुमर तो अचीवमेंट्स गुडा को वर्तमान नै केसलो तो कैन यू शो मी तो मु स्टार्ट करूची एटारू हां स्पंदन एटा थिला हमर ऑल इंडिया चिल्ड्रंस फेस्टिवल एटा वाओ 10th क्लास रे मते मिलथिला बेस्ट एक्ट्रेस रो अवार्ड टा देन या परे हाँ तो एटा राउरकेला फिल्म फेस्टिवल रो वाओ 2018 वाला तापरे एटा 2019 रो राउरकेला फिल्म फेस्टिवल रो ओ वाओ तापरे एटा गोटे डांडिया नाइट थिला 2018 रे तो सेथरे बेस्ट लुक रो मिलिथिला अवार्ड टा वाओ बहुत सुंदर हे छेटा भी एटा परे तापरे एटा तो एई वर्ष को टिके आसी जिवा स्वैप हे कि बाकी तो सब सर्टिफिकेट वगैरह अछि एमती ट्रॉफी कोडा नै मेडल सब भितरे रह जाई छी एटा एई वर्ष रो फर्स्ट ग्लोरी क्वीन वाला क्राउन ओ वाओ एटा पिंदी दियो गोटे स्क्रीनशॉट एग्जैक्टली चलो आ गोटे तो पिंदी दियो या अच्छा टिकेट हां टिके मुंडो डाउन करो सो एटा नेबा गोटे या वाह बहुत सुंदर है
अमेजिंग बहुत थैंक बढ़िया यू। ହେଲା तो निहाती भाবে बहुत बढ़िया ହେଇଛି କ୍ରାଉନ୍ ଟା ପିନ୍ଧିଛ ତାପରେ ତମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ରାଉନ୍ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିବ ସେଟା ଏଥର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଗ୍ଲୋରି କ୍ୱିନ୍ ସେଟା ତମ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଡ୍ ନିହାତି ଭାବେ ତମେ ନିଜେ ମେହନତ କରି ଏଇ ମକାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛ ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍स ତମ ପାଇଁ ରହୁଛି ମୋ ତରଫରୁ कि तुमको स्टडीज रे जो करछ स्टडीज के भी किछि हैम्पर ही माने पाठ सहित ए जिंस को मैनेज करबा टिके डिफिकल्टीज निहाती भाबे तो पाठ सहित केमते ए जिंस को मैनेज करछ स्टडीज तो निहाती भाबे प्रायोरिटी थिबो घरे को पाठ पढुनु काहे कि एते सब एतर करछ केते बेले प्रेशर सेमते किछि ना घर आडू सेमती केबे प्रेशर आसीनी लाइक होउनी कहि कि ऑब्वियस अछि टिके माने नंबर सेपट सेपट हुए बट लाइक सैटिस्फाइड जेति की माने इक्वली दीटा को नेकरी माने मैनेज करूची सेथे लाइक मो स्टडीज मो एकेडमिक से तो ठीक अछि लाइक हैम्पर होनी सेटा बड़ कथा एग्जैक्टली सो आमे ओडिया तो कथा हला ओडिसा लोक निहाती भाबे हमर कन्वर्सेशन को जानि पड़तबे वर्तमान तमरो किछि हिंदी फ्रेंड्स पे थिबे तापर आउट ऑफ ओडिसा लोक भी थिबे जो माने हमको देखुचंती सो लेट्स स्किप टू हिंदी तो वर्तमान आमे हिंदी रे कथा वार्ता हवा या कारण बहुत सारे हिंदी फ्रेंड्स निहाती भाबे थिबे एंड हमर भी थिबे तो सेमान भी चाहेबे कि टिके आमे भी जानि पारु तम विषय सो अभी हम लोग हिंदी में कन्वर्सेशन करेंगे तो अभी मेरे सेशन में जो है प्रतीक्षा and she is the winner of Mission Dreams Miss India 2020 and also the winner of Miss Glory Queen 2020. So she is live now. So anyone have any kind of questions, they can also ping you to ask Pratiksha that how she has started her career. So and from my side, I'm asking question as much as I can. So Pratiksha, अभी मैं आपसे पूछूंगी कि ये सब तो चल रहा है एम क्या है आपका मेन मोटो क्या है करने के लिए मॉडलिंग में प्रोफेशन बनाना है या फिर स्टडीज से कुछ आगे बढ़ना है या फिर कुछ ऐसा है कि नहीं मुझे डॉक्टर इंजीनियर कुछ तो बनना है या फिर इंग्लिश टीचर बनना है जबकि आप इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ रही हो तो ऐसा कुछ नहीं फिलहाल लाइक ऐसे सॉर्टेड नहीं है ऑब्वियस है डॉक्टर इंजीनियर तो बन नहीं सकते इंग्लिश ऑनर्स ले लिया है मैंने तो एकेडमिक्स के साथ ही आगे जाना है मॉडलिंग इज लाइक पैशन तो उसको पैशन में ही रखते हैं उसको प्रोफेशन बनाने का फिलहाल कुछ प्लान नहीं है हाँ बट जितने भी मतलब कोलैब्स से एंडोर्समेंट्स आएंगे तो उसको मैं करूंगी बट फिलहाल नहीं इस ईयर के बाद क्योंकि फिलहाल इस ईयर के लिए मेरा एम कुछ अलग ही है वो मैं बोल चुकी हूँ और एक बार बोल देती हूँ कि मुझे यहाँ से आई मीन राउरकेला उड़ीसा यहाँ से मेरे को भेजना है मिस और मिस्टर इंडिया के लिए अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स जो कि मतलब जिनमें उतना पोटेंशियल हो कि वो क्राउन को बैक करके ला सके वाह वेरी नाइस अपने बारे में भी सोचते हो प्लस दूसरे कंटेस्टेंट्स बारे में सोचते हो कि वो भी अचीव करे और मेरे उड़ीसा को प्राइड दे वो वेरी नाइस थिंग्स सो आप दूसरों को भी सिखाना चाहते हो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तो इतना अचीव कर ली हूँ खुद से सीख के खुद चले जाएंगे नहीं ऐसा नहीं है आपके अंदर आप दूसरों को भी ट्रेनिंग देना चाहते हो कि वो भी सीखे वो भी कुछ जाने फिर जाके वो भी अचीव करे सो वेरी नाइस थिंकिंग प्रतीक्षा वेरी नाइस सो ये सब तो चलता रहेगा तो नेक्स्ट है कुकिंग आपको खाना बनाना आता है या फिर नहीं ये सब चल रहा है खाना बाद में चलेगा तो वो सब भी पसंद है नहीं मैं बता दूं मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और मतलब मैं अपना तारीफ नहीं करूंगी पर मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ और अच्छा खाने खाना के बना साथ लेती एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है हूँ खाने के साथ एक्सप्लोर तो नया नया कुछ आइटम्स तो वगैरह बनाती होगी जैसे कि क्या क्या अभी तक लॉकडाउन में तो बहुत जन घर में बैठ के कुछ ना कुछ बना रहे होंगे तो आपने क्या तैयारी की है कुछ घर में नहीं स्पेशल चीजें नया नया तो वो अपने में ही मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था सारा वैसे कुछ नेमिंग तो हुआ नहीं बाकी डिशेस बोलूं तो जितना भी फेवरेट है मोमो से स्टार्ट करके बिरयानी पिज्जा हो गया मतलब अपना चाट गुपचुप वगैरह जो भी है सब कुछ बना लिया है कुछ छोड़ा नहीं है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है वाह बहुत बढ़िया मतलब सारा चीजें चाइनीज फूड ज्यादा पसंद है या फिर घर का खाना ज्यादा पसंद है इंडियन फूड सबसे ज्यादा अच्छा लगता है घर का खाना उससे अच्छा लगता है अभी फिलहाल पता चल रहा है मम्मी के हाथ के खाने का वैल्यू क्या होता है जब बाहर जाते हैं ना तब पता चलता है कि घर के खाने का वैल्यू क्या होता है तो अभी एग्जैक्टली वही तो वहां पर तो बहुत सारे कंटेस्टेंट होंगे जब आप मिस इंडिया के लिए कॉन्टेस्ट में गए मिशन ड्रीम्स का तो वहां पर इतने सारे कंटेस्टेंट जो थे सब कोई कहाँ कहाँ से थे
मतलब लाइक आप थे, मुझे तो बोल चुके हो आप बालेश्वर से थे और कोई कोई जगह से थे उड़ीसा से। उड़ीसा को छोड़ के उड़ीसा के जो बाहर से जो लोग थे वो कहाँ कहाँ से थे? दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, देन हमारा राजस्थान, गुजरात। लाइक हम बोल के चल सकते हैं कि इंडिया के हर स्टेट से, हर मतलब हर स्टेट के पॉपुलर सिटीज से सब आए हुए थे। इवन कि नॉर्थ ईस्ट से, असम से भी आए हुए थे। हमारे महाराष्ट्र के तो ऑब्वियस रहेंगे ही। देन दिल्ली इज एग्जैक्टली। कॉमन, फिर राजस्थान, गुजरात, बिहार, सब हर जगह से। फिर साउथ के भी लाइक चेन्नई, बैंगलोर, हर जगह से थे। तो उस मोमेंट में आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं उड़ीसा से हूँ और वो बैंगलोर से है, वो मतलब उन लोगों का ड्रेसिंग सेंस ऑलरेडी सेट रहता है, उन लोग बचपन से उनका सेंस अलग ही रहता है कि हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो उनके साथ compete करने में आपको थोड़ा-सा ऐसा डर नहीं लगा कि हिचक नहीं लगा, क्या मैं कर सकती हूँ? क्या मैं बीट कर सकती हूँ? क्या मैं इससे जीत सकती हूँ? ऐसा कुछ फीलिंग्स आई है वहाँ पर या फिर आप कुछ सोचे हो क्या? अपने माइंड सेट करके वहाँ पर पहुँचे थे? वो चीज़ें के बारे में शेयर करो प्लीज़। लाइक क्योंकि ये फैक्ट है कि उन लोग को थोड़ा प्रिविलेज मिलता है, वो स्टाइलिंग का मैटर हो, वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, जो भी हो, उन लोग को प्रिविलेज मिलता है, थोड़ा प्रिविलेज मिलता है। हुँ, लेकिन अगर हम लोग सब कोई एक प्लेटफॉर्म पे है तो हम लोग ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम स्मॉल टाउन से है, वो लोग बिग टाउन से है। सो उसको हुँ, दिमाग में लेके करना पड़ता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे अपना बेस्ट देना है। और मेरे मन में हमेशा ये रहता है, लाइक यहाँ पे मैं किसी से compete करने नहीं आई हूँ, यहाँ पे मैं खुद से compete करने आई हूँ। मेरे को खुद का बेस्ट वर्जन चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हम अपने को ही देखेंगे, दूसरों को देख के क्या करेंगे। हम ऑब्वियस है कि दूसरों से बहुत कुछ सीखने मिलता है, लेकिन फिर वो अगर ज्यादा उनमें घुस जाएंगे तो खुद का फिर वो प्रोग्रेस डाउन हो जाता है। मेरा तो यही थिंकिंग है। एग्ज़ैक्टली। तो आपका फ्रेंडशिप बॉन्ड उनके साथ कैसा था? उनके साथ मिलने के बाद फिर वो लोग भी कुछ बोले होंगे आप उड़ीसा से हो, मैं बैंगलोर से, मुंबई से हूँ, तो उनका जो फ्रेंडशिप बॉन्ड था 2 दिन का हो या 3 दिन का हो, तो कैसा था आपकी तरफ? नहीं, बहुत अच्छा था। इवन मेरी रूमीज, अगर वो लोग ये देख रही है तो वो लोग लाइक बहुत सपोर्टिव थी। मेरी एक रूममेट है, वो मतलब रूममेट थी, वो एक दिल्ली की थी, एक बैंगलोर की थी। दोनों ही बहुत सपोर्टिव थी। और सिर्फ वो दोनों नहीं, बल्कि मैंने और भी फ्रेंड्स बनाए। ऑब्वियस सा बात है, सबसे इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग का मतलब शेड्यूल इतना बिजी रहता था। सो और बिहार की एक फ्रेंड हुई मेरी, मध्य प्रदेश की एक फ्रेंड हुई। देन जो हमारी विनर्स है, बाकी दो विनर्स, उनसे भी मतलब अच्छा खासा ही था। फिर पंजाब की एक फ्रेंड हुई। तो सबसे वैसे नॉर्मल इंटरेक्शन सबसे हुआ। बट सो फ्रेंड्स बोलने जाए तो इन्हीं लोग के साथ थोड़ा ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग बन गया। एग्जैक्टली। सो किसी ने आपके लिए पूछा है रुचि सहित, तो उन्होंने पूछा है कि ये जो डायरेक्ट स्टेप आपका जो शुरू हुआ, स्टार्टिंग स्टेप मिस इंडिया के लिए, तो शुरू कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग कैसे की? आई थिंक ऑनलाइन के थ्रू से आपने किया होगा, क्योंकि ये तो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था। इस सिचुएशन में आप वहां तक पहुंचना इट्स नॉट सो इजी, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस तो ऑनलाइन हुआ था। तो किसी ने पूछा है कि किस तरह से आपका स्टार्टिंग हुआ था जर्नी, मतलब ये कॉन्टेस्ट के लिए स्पेशली आप फिनाले जब पहुंचे तब डायरेक्टली आप कोलकाता में किए, सेमीफाइनल फाइनल आई थिंक, तो आप दोनों वहीं पर किए। तो जो स्टार्टिंग का पार्ट था, सिलेक्शन प्रोसेस था आपका, स्टार्टिंग का जो देख रहे थे ड्रेसिंग सेंस एंड एवरीथिंग, तो वो कहाँ से शुरू हुआ स्टार्टिंग जर्नी? लाइक जब भी ऐसे पेजेंट्स होते हैं ना तो उनके आपको क्या करना है ना, आपको उनको इंस्टा, फेसबुक, उनके वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना रहता है। जब भी न्यू ईयर स्टार्ट होता है, एक नया साल, तो तभी से उनके अपडेट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। हर पेज का उनका अपना अपना मतलब टाइमिंग होता है। ईयर के हिसाब से अपने मंथ में वो लोग अपना मतलब पेजेंट स्टार्ट करते हैं। तो इनका भी वैसे ही मतलब उन लोग का एडवर्टीजमेंट चल रहा था। लाइक अभी से हम लोग ने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लिया है, तो आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो वैसे ही आप कोई भी मतलब पेजेंट को अगर आप देखो, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट अभी आप बिगिनर हो आप मिस इंडिया में जंप करोगे। वैसे तो मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं दूंगी। सबसे पहले लाइक लोकल शोज में जितना हो सके उतना करो। फेलियर वगैरह वो तो मिलेगा, रिजेक्शन तो भर भर के मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना कि उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। लाइक आप कहाँ पे आपका लैकिंग है, आपकी लूप होल्स क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वो सब आपको पता चलता है। सो डायरेक्ट तो मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मिस इंडिया जाइए। तो आप ना धीरे धीरे जब करते हो तो आपको धीरे धीरे एक्सपोजर भी मिलता है।
लाइक आपका जो थॉट है वो थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड होता है, आपका रीच भी एक्सपैंड होता है, आप अलग अलग लोगों से भी मिलते हो, तो धीरे धीरे आपको अलग अलग जगह से भी पता चलता है कि कहाँ पे कौन से शोज हो रहे हैं। तो उससे हम्म। आपको पता चल जाएगा। लाइक आप फॉलो करो। आप एक पेजेंट में अगर जाना चाहते हो तो मैं एडवाइस करूंगी कि 1 ईयर पहले, 1 ईयर पहले आप उनको फॉलो करो। उनके प्रीवियस जो मतलब वहां पे कंटेस्टेंट्स है उनसे आप फीडबैक लो, उनके जो विनर्स हैं उनको आप देखो कि कैसे वो लोग ने प्रिपेयर किया था खुद को। तो सारे प्रिपरेशन के बाद आप जाओ। और रहा बात रजिस्ट्रेशन का, वो आजकल तो ऑनलाइन है, इतना हार्ड नहीं है, इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है। आप डायरेक्ट जाके उनको डीएम कर सकते हो इंस्टा पे या फेसबुक पे, उनको आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो लाइक हम इंटरेस्टेड है तो हमको रजिस्टर करना है। देन वो लोग आपको फर्दर प्रोसेस के साथ एक्वेंटेड करवा देंगे, आप फर्दर जा सकते इसका मतलब आपने पहले उनको डीएम किया कि दैट आई एम इंटरेस्टेड, उन लोग अपने पेज पे एक अपडेट किया कि ये कॉन्टेस्ट होने वाला है, तो आपने हो। उनको या डीएम किया कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है एंड यू हैव हाँ टेकन पार्ट। तो ये सारा चीजें था जो कि आप पेज फॉलो करके गए। सबसे पहली बात है कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अपने इंटरेस्ट दिखाए, तो उन्होंने भी आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने अपडेट्स दिया कि ऐसा ऐसा कॉन्टेस्ट है, ये है वो है, आपका प्रोफाइल भेजने के लिए आपको बोला होगा, फिर आपने प्रोफाइल भेजा होगा उनको, फिर उसके बाद पार्टिसिपेट किए होंगे। सो वेरी नाइस। तो या स्टार्टिंग वाला जो था, तो टोटल कितना सारा राउंड करने के बाद यहाँ तक आप पहुंचे? टोटल कितना राउंड था आपका ये कॉन्टेस्ट में? कितना राउंड था? कुछ होगा स्टार्टिंग राउंड, मैक्सिमम शो आई थिंक मैक्सिमम राउंड आपका ऑनलाइन था एंड यू हैव गिवन योर 100%, जिस वजह से आप यहाँ तक पहुंच गए। सो उस चीजों के बारे में प्लीज शेयर करो कि कितना सारा राउंड था और सारे राउंड में क्या क्या था, क्योंकि कुछ व्यूअर्स जानना भी चाहते हैं बिकॉज फ्रॉम यू दे आल्सो वांटेड टू पार्टिसिपेट नेक्स्ट ईयर। तो कितना सारा राउंड था, क्या था, उस चीजों के बारे में थोड़ा सा प्लीज शेयर करो। हाँ, तो हम लोग का जो फर्स्ट था, हम लोग रजिस्टर करने के बाद हमें उन लोग मतलब उसी टाइम पे हमको हमारे लाइक 3 बेस्ट फोटोज उनको सेंड करने रहते हैं। तो रजिस्टर करने के बाद हमें हमारा मतलब एक प्रोफाइल मिलता है, हमें वहाँ पे वोट्स कलेक्ट करने रहते हैं। देन वोट्स के आधार पर हम लोग नेक्स्ट राउंड्स में जाते हैं। वहाँ पे फिर हम लोग को अपना इंट्रोडक्शन वीडियो लाइक ऑडिशन टाइप स्क्रीनिंग इंट्रोडक्शन वीडियो भेजना था। फिर उसके बाद वो ऑडिशन राउंड क्लियर होने के बाद हम लोग को देना था लाइक मैंने बताया पहले कि लाइक सोशल वर्क अगर कुछ कर रहे हैं तो वो मतलब उसका हम लोग को डिस्क्रिप्शन विद प्रॉपर वीडियो एंड फोटोज वो सेंड करना है। देन अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करके उनको फोटोग्राफ देना है। तो ये हो गया ऑनलाइन में हमारा इतना हुआ था। देन वो लोग तो देखते ही रहते हैं मतलब लाइक हमारा हम कितना मतलब एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, हम लोग का सोशल मीडिया हैंडल कितना स्ट्रांग है वही सब। तो वो सब गया। देन फिनाले में आप जब पहुंचते हो तो फिनाले आपका जितना भी दिन का होता है ना, तो वहां पे अलग अलग राउंड को डिवाइड कर दिए रहते हैं। तो फर्स्ट डे में हमारा टैलेंट राउंड हुआ था, सेकेंड डे में हमारा स्विमवेयर प्लस डिजाइनर ड्रेस राउंड एक हुआ था। देन रात को वो कॉकटेल पार्टी थोड़ा हुआ था, थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। फिर हमारा जो थर्ड डे था, जो मेन ग्रैंड फिनाले जिस दिन था, उस दिन हम लोग का सुबह फिटनेस राउंड हुआ। फिटनेस राउंड के बाद देन हम लोग का ग्रूमिंग वगैरह रैंप सेशंस, उसके बाद रात को ग्रैंड फिनाले। फिर ग्रैंड फिनाले में थ्री थ्री राउंड्स थे। उसमें से फर्स्ट राउंड था नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, जिसमें हम लोग को ड्रेस बना के लेना था अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए। सेकेंड था कॉकटेल ड्रेस, जो पार्टी वेयर हमारा रहता है वो। और थर्ड था डिजाइनर ड्रेस राउंड, जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं। और इन सब के बेसिस पे जिन लोग का परफॉर्मेंस लाइक अच्छा रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, तो वही लोग टॉप 13 में सिलेक्ट हुए थे। फिर उन लोग का क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, लाइक क्वेश्चन आंसर राउंड के बाद फाइनल 3 विनर्स निकलते हैं। सो इसमें जज कौन कौन थे ये कॉन्टेस्ट में? जजेस कहाँ से थे? हाँ, कैसे बना? तो कैन यू से हमारी जो फाउंडर थी प्रिया मैम, वो थी यहाँ पे जज। देन हमारे दो इंटरनेशनल ग्रूमर्स थे, संजय सर और सुमन सर, वो थे। प्लस हमारे लाइक लास्ट ईयर्स के विनर्स, मिस कैटेगरी के हमारे फर्स्ट रनर अप, देन मिसेस कैटेगरी के सेकंड रनर अप, ये सब हमारे जूरी मेंबर्स थे। जूरी मेंबर्स थे? आई थिंक आई एम आस्किंग अबाउट दैट इज ऑल अबाउट द जजेस, मतलब जजमेंट कैसा था, जजेस कौन कौन थे? ये लोग सबके अच्छा, जजेस थे, जूरी मेंबर?
वो चीज में पूछती थी। जजमेंट कैसा था? लाइक मेरे लिए मैं बताऊं ना तो पूरा शो मैं थ्रू आउट द शो के बारे में बताती हूँ। लाइक स्टार्टिंग से ही आपको कोई भी मोमेंट में ना ऐसा, जो आपने पहले मेरे को क्वेश्चन किया था ना कि लाइक दिल्ली मुंबई की लड़की लोग से लाइक स्मॉल टाउन गर्ल्स कैसा वो दिमाग में रहता है, वो फीलिंग ना मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली मुझे स्टार्टिंग से नहीं आया, क्योंकि सर हमें हर टाइम पंप अप करते रहते हैं, हर टाइम एनकरेज करते रहते हैं लाइक यू आर द बेस्ट। मतलब यू आर द बेस्ट सब में नहीं, अपने आप में तुम सबसे बेस्ट हो, तो और खुद को अच्छा करो और खुद को अच्छा करो। तो वो चीज ना एक एक पॉइंट पे आ जाता है लाइक अगर खुद के लिए नहीं तो उनके लिए एटलीस्ट हम उनको डाउन नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग से वैसा था। देन फिनाले का बोलूं तो फिनाले में जजमेंट बहुत अच्छा था। लाइक वो एक होता है ना बायस्ड, वैसे नहीं है वो। मतलब लाइक पार्शियलिटी वगैरह वो जो सब हमारे लोकल शोज में होता है ना, वो सब वहां पे नहीं देखने को मिला। वो एकदम फेयर, लाइक जो डिजर्विंग है सो है। और एक चीज है कि ना हम लोग का मिसकॉन्सेप्शन रहता है, ब्यूटी पेजेंट्स है तो जो सबसे सुंदर लड़की है वही जीतनी चाहिए। ये एक सबसे ना गलत परसेप्शन है। और सबसे मतलब क्या बोलूं, लोगों के दिमाग में एक वो छा गया है, तो उसको वो हटाए। जो लोग भी ये देख रहे हैं और जो भी आगे इसको स्प्रेड करेंगे उनके लिए इतना है कि ऐसा नहीं कि जो सबसे सुंदर है वो जीतेगी। सब कोई अपने वे में सुंदर होता है, वो देखने का नजरिया होता है। इट्स अबाउट कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना कॉन्फिडेंट है, कौन खुद को कितना ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर सकता है। एग्जैक्टली। नॉट ओनली फिजिकली, कोई इतना ब्यूटीफुल है, किसी का इतना अच्छा मतलब बॉडी फिगर वगैरह, वो सब आज के डेट में ब्यूटी पेजेंट्स वो सब प्रमोट नहीं करते। लाइक ओवरऑल, ओवरऑल जो अच्छा रहता है लाइक स्पीकिंग स्किल्स में अच्छा होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली। स्पेशली वो कॉन्फिडेंट। मेन चीज है कि आपका जो भी स्किन टाइप है, आपका जो भी फेस टाइप है, आप जैसे भी हो वैसे आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, वो मैटर करता है। क्योंकि अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप कैसे दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्ट करे उस वे पे। वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। सो किसी ने आपके लिए लेख भी दिया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी नाइस थिंग्स दैट यू हैव स्पोकन नाउ। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज आपने अभी बोला कि नहीं, पहले खुद को एक्सेप्ट करो, तभी जाके आप दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। लुक ज्यादातर मैटर नहीं करता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है एंड द वे यू स्पीक, द वे यू इंटरेक्ट विद अदर्स एंड यू वे यू क्रिएट अ इमेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स ना, देन ओनली यू या कैन। सो वो चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा पॉइंट प्रतीक्षा आपने रखा। तो जो अपकमिंग मॉडल्स है, कुछ कहना चाहते हैं प्रतीक्षा? इफ यू वांट टू से हाँ, समथिंग तो प्लीज। एक्चुअली एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ ना हमारे एक मिस्टर कैटेगरी के फाइनलिस्ट भी प्रेजेंट है, प्रांजल। तो उनको बहुत बहुत हाय। Yeah, I'm saying from that time he was texting you and writing so many या things about. Very nice, Pranshal. Nice to see you. And thank you so much for joining the sessions and inspiring Pratiksha in the sessions. So thank you दी इतना कुछ बताने के लिए, आपकी इसी के जर्नी। थ्रू ना, इसी के या थ्रू मैं उनको कुछ बोलना चाहती हूँ। लाइक हम लोग का ओ ऐसा टैलेंट आपने कभी देखा नहीं होगा, लिटरली बता रही हूँ। उनका सबसे बेस्ट था। और अगर प्रांजल आप ये देख रहे हो ना तो और एक बार मैं बोल देती हूँ, उधर भी मैंने बोला था और एक बार मैं बोल देती हूँ, यू आर द बेस्ट इन मिस्टर कैटेगरी फॉर टैलेंट राउंड। wow, very nice. Somebody has written for you, Pratiksha, that I appreciate you, your words as you told whatever now. Exactly. थैंक यू सो She's मच, थैंक यू। everyone is giving you lots of love, so keep it up, Pratiksha. So Pranjal is from which state? From Odisha or out of Odisha? ना ना, आउट ऑफ ओडिशा, ही इज फ्रॉम आउट ऑफ ओडिशा। Very nice. So social work तो जो आपने किया उस टाइम में, तो अभी आपको करने का मन है या फिर नहीं, उस टाइम के लिए किया हुआ था? नहीं 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 अभी। नहीं, ये एक्चुअली ना मतलब ये गलत, हाँ, तो ये एक्चुअली एक ना गलत परसेप्शन आ जाता है। लाइक जो लड़की मॉडलिंग फील्ड में या पेजेंट फील्ड में जाती है ना, तो
अगर वो उसके काम को लाइक पब्लिक करती है तो सबको को लगता है कि ये मतलब इसी कॉन्टेस्ट के लिए है या फिर मतलब शो ऑफ काइंड ऑफ। तो इसीलिए मैं मेरा ये स्टार्ट हो चुका है लाइक वो मतलब पिछले ईयर से ये मतलब प्रोसेस में है। वो क्या था कि मैं काम में बिजी रहने के चलते मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी, तो इस साल मार्च में वो स्टार्ट हो गया था, बट मैं पब्लिक नहीं कर रही थी इस चीज को। तो जब मैं टीजीपीसी में थी तो उसमें मेरे को मतलब हम लोग का एक सबटाइटल था, तो उसी के लिए मैंने पोस्ट किए मेरे काम के बारे में। मतलब अब तक जितने भी मैंने काम किए हुए थे तो उन वो सब मैंने पोस्ट किए। तो ये ऐसा नहीं है कि मेरा काम बंद हो जाएगा, मेरा कॉन्टेस्ट खत्म हो गया तो मेरा काम बंद हो जाएगा, या फिर कॉन्टेस्ट के लिए मैंने कुछ किया, वो सब कुछ नहीं है। मेरा काम जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। अभी अभी हम लोग का मतलब मैं मीटअप करने का सोच रही हूँ, अभी तो मतलब मैं बिजी हूँ थोड़ा। तो उन लोग से मेरा बात हुआ है लाइक न्यू ईयर के बाद, 1 जैन के बाद, कब वो लोग भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ तो एक बार मीटअप करेंगे, कुछ फर्दर प्लान्स करेंगे। ये तो कभी बंद नहीं होने वाला, इतना मैं श्योर कर सकती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ऐसे ही चलते जाए और ऐसे ही करते जाओ, बहुत सारा तरक्की करते जाओ प्रतीक्षा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। सो आपका जो फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स है आपके लिए, तो फ्रेंड सर्कल में कैसा है आपके लिए? सपोर्टिव है या फिर बोलते हैं नहीं बड़ी स्टार बन गए, बड़ी मॉडल बन गए, इसको यहाँ बचाएंगे नहीं, ऐसा कुछ है? या फिर सबको बहुत प्यार करते हैं? मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। बाकी आई लव यू बाकी को मोर। लव यू टू। तो फ्रेंड्स का लाइक रिएक्शन, मेरे फ्रेंड्स का मैंने ग्लोरी के टाइम भी बताया था, मैं अब भी बता रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग का रिएक्शन वाज लाइक हमको पता था तू जा रही है तो कुछ करके ही आएगी, बट इतना कुछ करके आएगी वो नहीं पता था। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स का सपोर्ट तो हर टाइम रहता है लाइक ऐसा नहीं है कि हर टाइम कोई फिजिकली प्रेजेंट रहेगा, बट वो जो मेंटल सपोर्ट मिलता है ना उनसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सारे मतलब दोस्त लोग का रिस्पॉन्स वाज लाइक ऐसा। मोमेंट, राइट? हाँ एक अच्छा हाँ अच्छा सा फील होता है कि फ्रेंड्स लोग सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स लोग फोटो स्टेटस में डालते हैं, दैट प्राउड ऑफ यू प्रतीक्षा, दैट प्रतीक्षा। सो ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं नहीं, दोस्तों का सपोर्ट है, दोस्त प्यार देते हैं। कोई कोई होता है ना इगोइस्टिक में नहीं देते, वो चीज नहीं होनी चाहिए, प्यार रहनी चाहिए। अगर उनका प्यार आपके साथ रहेगा ना, आपको और मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। सो वेरी नाइस। लाइक आ अगर अगर हम लोग ना मतलब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज भी एक्सेप्ट करना है, अगर 100 लोगों से हम मिलते हैं देन उसमें से अगर 90% हमें अप्रिशिएट करते हैं तो 10 जन हमें क्रिटिसाइज करेंगे। तो उसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है लाइक हम उस क्रिटिसिज्म को कैसे लेंगे। अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो हम उसको अच्छे से लेंगे, और अगर वो हमारे लिए खराब है तो शांति से हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है उसको हम लोग पकड़ के बैठे। बाकी जो 90 जन है हम उन पे फोकस करते हैं कि हाँ हमारे इतने सपोर्टर्स है, लाइक इतने जन है प्यार करने के लिए, 10 जन उसको लाइक 10 जन का इम्पैक्ट उसको नहीं खराब करना चाहिए। Very nice. And the best thing is that now you are from a government autonomous college, Rourkela. That is from our college, not my college. I can say our college. We both are from same college. And you are my junior and I'm your senior. But I'm proud of you. Very nice. I always feel proud of you because you are from my college, our college. And that too you have represented Odisha in all over India. So very nice, Pratiksha. Like आज आप कॉलेज गए थे, तो आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उनका रिएक्शंस आपके लिए कैसा था? आपने कहा था कि हमें आज कॉलेज जाने वाली हूँ और आज कुछ अलग ही होने वाला है, तो क्या अलग चीज कुछ तो धमाल बचा होगा जरूर कॉलेज में। अनफॉर्चुनेटली लाइक मेरे कोई बैचमेट्स थे नहीं वहां पे, इवन सीनियर भी कोई थे नहीं। हम लोग का तो अभी एडमिशन चल रहा है पीजी के लिए। मेरे बैचमेट्स तो कोई थे नहीं, बस 2-3 सीनियर ही थे जिनसे मिली लाइक देवर। अभी तो सब मार्क्स में थे, मैं भी मार्क्स में थी, वो लोग भी मार्क्स में थे, तो मैं उन लोग को पहचान नहीं पाई। फिर वो लोग आके हाँ अभी तो नहीं पहचानोगी, मैं बोली नहीं नहीं मैं मास्क में थे इसलिए मैं नहीं पहचान पाई। तो बस वैसे ही उन लोग के साथ देन प्रिंसिपल सर से मीट था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सो सर का रेस्पॉन्स वाज लाइक आपने किया, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है, मेरी छोटी बच्ची जैसी हो, ऐसे वैसे। तो सर का रेस्पॉन्स वाज लाइक वाओ,
फिर सर ने सबसे मतलब जो भी उस टाइम आ रहे थे सारे टीचर्स थे, सर ने इंट्रोड्यूस करवाया, सारे टीचर्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। तो इससे ना क्या होता है कि इंकरेजमेंट एक मिलता है, लाइक हाँ कुछ करके आए हैं। अब तो और 2 साल कॉलेज में रहना है, उस 2 साल में भी पूरा नाम करवा देना है कि कॉलेज को और नाम जब निकलोगी ना पूरा तब लोग पूरा। पहचान ये बंदी कुछ करके गई थी कॉलेज में, नाम वही करके। चाहिए वही चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज से ही नेक्स्ट कोई निकल जाए अगर, तो बहुत बड़ा बात होगा। चलो मिस इंडिया भी छोड़ दो, मिस्टर इंडिया छोड़ दो, कोई मिस्टर एंड मिस ओडिशा भी निकल जाए तब भी मैं बहुत खुश हूँ। अगर कोई मेरा गाइडेंस लेके उतना भी पहुंचता है तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। एग्जैक्टली, फिर लोग कहेंगे ना आप चले गए लेकिन आपका यादें छोड़ गए, जो कि हमारे दिल में अभी तक है और आपको याद करते हैं। वही चीजें होना चाहिए ना, जब आप वहां से छोड़ के चली भी जाओ ना, नहीं ये लड़की कुछ करके गई थी, बहुत अच्छा करके गई थी, लोग अच्छे तरीके से आपको याद कर रहे हैं। तो बहुत जनों ने आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है, बहुत लोगों ने आपके लिए थैंक बहुत यू अच्छी सो अच्छी मच। कुछ लोगों टेक्स्ट देख लिखते हैं सो दैट दे विल आल्सो फील गुड दैट प्रतीक्षा इज गिविंग रिस्पॉन्स टू देम आल्सो। जो लोग में या देख रहे हैं हम लोग का श्योर। चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है, जिस वजह से हम लोग कुछ मैसेजेस को ज्यादातर रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके हम रिप्लाई दे। और यू ऑल्सो नो दैट कि हम लोग प्रतीक्षा के बारे में जानना भी चाहते हैं कि वो कैसे सक्सेस में पहुंची, क्या की। तो उस वजह से हम लोग ज्यादातर लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग आपका टेक्स्ट देख रहे हैं और आपका जो भी प्यार हमारे तरफ आ रहा है ना उसको हम रिसीव भी कर रहे हैं। सो मुझे भी बोल दो आप दोनों दी, लव यू दी, रियली आप लाइफ में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत बात ही हुई, वेरी नाइस। रुचि ने आपके थैंक लिए लिखा यू। है, and Pranjal is writing that my birthplace is Odisha. Oh, very nice. Proud of you. That is you're from Odisha also. तो ओडिशा के लिए भी प्राउड हो, इंडिया के लिए भी प्राउड हो प्रांजल। मुझे भी बोल दो आप दोनों भी, या ऑल द बेस्ट फॉर यू फ्रॉम माय साइड। यस प्रतीक्षा प्लीज से रुचि ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। सबको ऑल द बेस्ट, नॉट ओनली जो लोग मॉडलिंग फील्ड में है बट सबको ऑल द बेस्ट अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के लिए। सबको को तरक्की मिले, सबको अपने हाइट्स पे पहुंचे, बस यही विशेष है। The anyone has written for you. You are just awesome. After winning, also don't have an ego. Appreciate exactly. She is right. ये थैंक यू। सही है। बोल चुकी हूँ प्रतीक्षा आपको कि मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ। ओ वेरी नाइस, या सीरियसली थैंक यू वो थैंक यू government से थैंक है। यू। तो वेरी नाइस प्रतीक्षा, ये सारी चीजें तो हमने पता कर लिया कि मॉडलिंग में कैसे जाना है, कैसे करना है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लिया कि सबका प्यार आपके लिए बहुत है। तो आपका अभी ये प्रोजेक्ट है कि लोगों को आपको सिखाना है, उनको लेके आगे बढ़ना है। So somebody has written Odia. Actually, we have already talked in Odia. So now we are talking in Hindi because some of our Hindi friends are also there. They are from other states also. They are also want to talk with us. They are also want to interact with us. So we have to follow both the language, Hindi, English, Odia, and three languages. We have already talked in Odia. So now we are talking in Hindi. So इसलिए प्लीज सॉरी आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये उड़ीसा की भी प्राइड है, इंडिया की भी प्राइड है, तो हमें दोनों चीज को फॉलो अप करके आगे बढ़ना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जिस किसी ने भी लिखा है ओके फाइन। एंड फॉर हेल्पिंग, प्रांजल, प्रांजल क्या लिखा है उन्होंने? एंड फॉर हाँ हेल्पिंग मी इन फिटनेस राउंड। ओह। वहां पे ना लाइक हम लोग का जब या फिटनेस राउंड हुआ था ना, हम्म उसमें लाइक जब बॉयज का चल रहा था, ये एक कॉमेडी पार्ट है। सो जब बॉयज का चल रहा था तो लाइक सेट वाइज चल रहा था, लाइक एक सेट में 5 to 6 बॉयज और उन लोग को वॉलंटियर कर रहे थे गर्ल्स। तो हमको क्या करना था कि लाइक देखना था वो लोग लिटरली सही कर रहे हैं या नहीं। तो वही तो मेरे आगे मतलब मेरे को इनको वॉलंटियर करना था प्रांजल को। इन्होंने सही से कंप्लीट किया था, सारा कंप्लीट किया था इन्होंने, बट मैंने इनसे एक्स्ट्रा मरवा लिए थोड़े। और बाद में मैंने बोले आपने नहीं किया था, तो मैंने बढ़ा के बोल दिया बाकी आपने सारा कंप्लीट कर लिया था प्रांजल, वो बस मेरा एक मजाक था, आई एम सॉरी। ओ वेरी नाइस वेरी नाइस। ओ फन होना चाहिए, दोस्ती में फन मस्ती वो सारी चीज होना चाहिए। तो आपका फैमिली का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो फैमिली को छोड़ के आपका बाहर का जो भी रिलेटिव्स वगैरह है, उनका रिस्पॉन्स आपके मॉडलिंग के लिए कैसा है? मतलब
हर कोई लेता है ना, कभी कभी कोई चीज ना मॉडलिंग को नेगेटिव वे भी ले लेते हैं, ये लड़की मॉडलिंग करे ये करे, ऐसा चीज भी होता है। तो क्या आपके साथ ऐसा चीज हुई है, लाइक मॉडलिंग को लेके नथिंग हैज हैपेंड? ये लाइक कॉमन है, ये तो कॉमन है। और हम लोग लाइक उड़िया फैमिली वाले, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ हम लोग खराब है, बट उड़िया फैमिली थोड़ा ऑर्थोडॉक्स होता है। तो ये तो मतलब कॉमन सा बात है। देन हाँ, सुनने में आया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, लाइक क्यों इस फील्ड में छोड़ रहे हो, लाइक अच्छा नहीं होता। वो एक मॉडलिंग को लेके एक नेगेटिव इम्पैक्ट है सबके दिमाग में कहीं ना कहीं, जितने भी हम लोग मॉडर्न हो जाए, जितने भी हम लोग आगे बढ़ जाए, बट वो तो रहेगा ही। सो वो था पहले पहले, बट ग्लोरी के बाद वो थोड़ा चेंज हुआ, और अभी तो पूरा ही चेंज हो गया। अभी तो जिन लोग से बात भी नहीं होता, तो वो लोग भी फोन करके विश कर रहे हैं। मुझे नहीं कर रहे, मेरा तो बात नहीं हो पा रहा है, मम्मी अटेंड कर रही है सारा, वो बहुत खुश है, बस वही चाहिए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने अभी व्यूअर्स हैं या फिर मेरे भी फॉलोअर्स हैं, प्लीज जाके प्रतीक्षा को फॉलो अप करें, उनके सारी अपडेट्स देखे। अगर आपको मॉडलिंग करने का मन है तो प्लीज प्रतीक्षा का जितने भी पोस्ट है वो सारी चीजों को देखे, उनसे उनको डीएम भी करे, सो दैट वो आपको रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे कि मॉडलिंग में कैसे करियर आगे करना है, कैसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, कैसे अचीव करना है, वो सारी चीजों के बारे में वो आपको नॉलेज भी देंगे, शेयर भी करेंगे, जो कि अभी आपको लाइव में बता भी रही है कि मुझे दूसरों को सिखाना है और उनको सिखा के इंडिया पे रिप्रेजेंट करना है, मेरा क्राउन किसी इंडिया की लड़की या फिर उड़ीसा की लड़की को पास करना है। तो किसी को भी मन प्रतीक्षा को डीएम करे और बोले कि दैट मैम आई एम इंटरेस्टेड फॉर दैट एंड शी इज वेरी इंस्पायरिंग गर्ल एंड शी विल अप्रिशिएट अदर्स ऑल्सो। सो ये चीज मैं बोलना चाहूंगी सारे व्यूअर्स को, एंड प्लीज फॉलो अवर प्रतीक्षा। एंड वेरी नाइस प्रतीक्षा, आपसे इंटरेक्ट करके तो बहुत सारी बातें तो हो रही है, और कुछ कुछ बातें करेंगे, कुछ पैर भी खेलेंगे, उसके बाद इस सेशन को ऑफ करेंगे। तो वी विल हैव विद सो फेवरेट मूवी, बॉलीवुड मूवी? फेवरेट मूवी फिलहाल के लिए तो छिछोरे। छिछोरे, वेरी नाइस। फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड? एक्टर कार्तिक आर्यन। Oh, nice, very nice. So okay, so favorite fashion designer? फैशन डिजाइनर फाल्गुनी Because शेखिका। asking about fashion designer or model. Okay, या so फाल्गुनी शेखिका। favorite model फेवरेट from मॉडल, India? अरे मेरी मेरी अपनी टीचर अलेसिया रॉथ मैम, और कौन हो सकता है। Oh wow, anybody from Odisha? Anybody from Odisha? उड़ीसा, Any model? उड़ीसा। या आई एडमायर अरूपा रथ अ लॉट। अगर मतलब उन तक ये मैसेज पहुंचता है, देन बहुत मतलब उनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, लाइक उनका स्टाइलिंग और उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस वो बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने मुझे ऑडिशन के टाइम पे भी बहुत लाइक हेल्प किया था, गाइडेंस बहुत दिया था। एंड वो हमारी पिछले साल की लाइक 2019 की वो फेमिना मिस इंडिया उड़ीसा की टॉप 3 में रह चुकी है। सो Oh, wow, very nice. So models, I know that. So anybody, okay, fine. Somebody has written about dress. Yes, she will say something about her dress also. Please DM her. She'll personally tell you about her dresses and all everything. So ये चीज को मेरे को पता भी चल गया. So अब चीजें हैं फेवरेट टॉलीवुड एक्टर? टॉलीवुड एक्टर, टॉलीवुड तो इतना देखते नहीं है, बट फिर भी आलू अर्जुन। एक साथ आलू अर्जुन। यस, ही इज ऑल्सो माई फेवरेट, आलू अर्जुन। उसका एक्टिंग, उसका बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। सो वेरी नाइस। स्पेशली डांस, डांस मूव्स। Oh, so inspiring model. You have said, I think, both of them. या Anyone is there for them? Inspiring model. Okay, fine. Done. So favorite color? ब्लू, ब्लू ब्लैक। Blue, black. Okay, I know your designing dresses are also basically blue and black also. But in the finale, you have wear white. Okay, या nice, very nice. Okay, next question is for you. Favorite locations? फेवरेट लोकेशन इन इंडिया इट इज लाइक I like hill
station especially. So I can say Kasol, Kasoli. I want to visit those places actually. And then besides these, like if we talk about metro cities, then obviously Mumbai. और इंडिया Mumbai. के बाहर अगर बोलूँ तो Santorini is my favorite destination. Maldives too. Yeah. Have you thought that you will doing some of the Bollywood projects and all, or have you thought you will be doing some very nice projects that is out of India or out of Odisha, some kind of projects? Are you Um, interested? I am interested, but for now, if even if I get any project outside Odisha or inside Odisha, I will deny because there are no such plans of taking those projects. Okay, okay. So anybody has offered you in acting and all those things out of Odisha? I'm not talking about inside Odisha. So out of Odisha, because we have won Miss India title, that is Mission Miss India 2020. So anybody has offered you that please do in our project, which is any kind of serial, Um, any kind of not with project, anything about that? not for serial, but for web series, I have got some offers. Then for collabs and all, I have got. So for Okay, okay. collabs, I'm open. I'm open for collabs, but for web series or albums, I'm not like into it for now. Okay, okay, fine. So this kinds of thing you have done till now. Okay. So what was your dream project? Sorry, what is your dream project now? What you have thought about that? What you will be doing now? Dream project, like I have said earlier, I want to send models to represent Oh, Odisha nationally. not anything others. That was your main project. Are you not interested for to be a heroine or actress like all No, those? no, no, nothing sorted. No, I have no such plans, no such dream projects in the field of acting. Like I want this film or that film. No, no. You have to continue. You are interested that you will continue your life in modeling only. Yeah, योर that's this. कैरियर वेरी नाइस पॉइंट सो सब लोग सोचते हैं ना कि नहीं मुझे एक्टिंग में भी चले जाना है मुझे डांस में नहीं आपका एक ही फोकस है कि मुझे मॉडलिंग में ही कैरियर करना है मुझे मॉडलिंग में ही आगे जाना है और मॉडलिंग में दूसरों को ट्रेनिंग देके आगे लेके जाना है सो दैट मीन यू वांटेड टू बी अ कोरियोग्राफर आल्सो इन मॉडलिंग राइट मॉडलिंग Yeah, कोरियोग्राफर kind कि of. आप लोग सुष्मिता सेन अभी जो कॉन्टेस्ट हो रहा है एमटीवी में वो जैसे अभी जज होकर वो लोगों को ट्रेनिंग दे रही है सिखा रही है तो उस टाइप का आपको बनने का मन है या अगर मैं उस उधर पहुंच जाऊंगी तो फिर तो मतलब मेरा जीवन सार्थक हो गया बट या लाइक यहाँ पे जो मतलब मेन मिसकॉन्सेप्शंस है ना पहले वो सब दूर करना है मेरे को मॉडलिंग और पैजेंट दोनों अलग अलग चीज है लाइक पैजेंट इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ हाउ आर यू और मॉडलिंग इज लाइक रिप्रेजेंटिंग अदर्स आप किसी का गारमेंट रिप्रेजेंट करते हो आप किसी के ऑर्नामेंट्स रिप्रेजेंट करते हो आप किसी ब्रांड को प्रमोट करते हो वो आ जाता है मॉडलिंग में मॉडलिंग और पैजेंट्स रिलेटेड है इंडीड रिलेटेड है पैजेंट्स में जो लोग अच्छा करते हैं उन लोग को मिलता है फिर मॉडलिंग के असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं बट ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि लाइक जो लोग पैजेंट फील्ड में है मॉडलिंग के चक्कर में उन लोग ने पैजेंट को छोड़ दिया है क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि पैजेंट में इतना हम लोग को लाइक एक्सपोजर सॉरी एक्सपोजर नहीं इतना हम लोग पैजेंट्स में लाइक हम लोग इतने एक्सपोज नहीं होते जितना हम लोग मॉडलिंग में होते हैं और अगर हम लोग फाइनेंशियली भी बात करें तो पैजेंट्स में जो विनर होते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है एज कंपेयर टू अदर पार्टिसिपेंट्स बट चीज क्या है ना एक्सपीरियंस मिलता है वहां पे और जो हमारे जितने भी फाइनलिस्ट होते हैं या ऑडिशन में भी सो वहां पे बहुत मतलब एक एक शो में बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आते हैं बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आते हैं बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं तो वहां पे भी ऐसे होता है लाइक कोई भी लड़की डिसाइड्स विनर्स अगर कोई भी लड़की कोई भी ऐसे उनको पसंद आ जाती है तो उनको वो काम दे सकते हैं तो वैसे होता है और मॉडलिंग सेपरेट हो जाता है ये सबसे मॉडलिंग पूरा अलग हो जाता है लाइक मॉडलिंग में आप आपका कुछ अपना मतलब वहां पे रहता नहीं है आप किसी के कपड़े पहन के आप उनको रिप्रेजेंट करते हो आप किसी के ब्रांड को प्रमोट करते हो इवन इन एक्टिंग
आपका खुद का क्या रहता है? नहीं रहता कुछ। आपको जो दिया जाता है आप उसको परफॉर्म करते हो। और आई रिस्पेक्ट इक्वली बोथ द फील्ड्स, इवन थ्री ऑफ देम। बट क्या होता है ना कि लोग तीनों को मिला देते हैं, मॉडलिंग, एक्टिंग और पैजेंट तीनों को मिला देते हैं। तीनों सेम नहीं होते। पैजेंट में आप कैसे हो, आप अपना पर्सनैलिटी दिखाते हो जाके। लाइक आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप एज अ पर्सन कैसे हो, आप क्या करना चाहते हो, सोसाइटी का किस वे में पे बैक करना चाहते हो, वो सब होता है पैजेंट में। और मॉडलिंग में तो लाइक पूरा ही अलग है। हम लोग इवन जब रैंप पे भी चलते हैं, लाइक हम मॉडल्स को देखते हैं, उन लोग का फेस इज लाइक डल, लाइक कुछ एक्सप्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज लोगों का अटेंशन उनके फेस पे नहीं जाना चाहिए। वो जिस चीज को प्रमोट कर रहे लोग उसको देखना चाहिए। बेसिक में अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड में समझाओ तो ऐसे ही कर सकती हूँ एग्जाम्पल दे दे के। पैजेंट में क्या होता है, हम जितने मतलब अंदर से निकलता है, लाइक हाँ हम लोग स्टेज के ऊपर है, हमें खुद को प्रेजेंट करना है। तो पैजेंट्स में लाइक स्माइल इज कंपलसरी, हर टाइम हंसना पड़ता है। बट मॉडलिंग में इट इज अ बिग नो नो। मॉडलिंग में लाइक अ फॉन फेस, सिंपल, नो एक्सप्रेशन, नथिंग एट ऑल। सो अभी तक के लिए मॉडलिंग में ही करियर आगे चलना बहुत अच्छी पॉइंट है। और तो सारी चीजें के मैं बारे में जान रही हूँ। मोनालिसा मैम आप जाइए मिस वर्ल्ड। सॉरी, आई एम नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड। एक्चुअली प्रतीक्षा इज अ वेरी गुड मॉडल एंड शी इज वेरी टैलेंटेड, सो इंस्पायर हर, गिव लॉट्स ऑफ प्रतीक्षा नहीं एक्चुअली। नहीं, आप ट्राई करिए। मैं तो बोल रही हूँ आप ट्राई करिए। मेरा तो प्लान था कि इस बार अगर ग्लोरी में होता तो मैं मेरा क्राउन आपको पास करती। हम लोग का इस बारे में बात भी हो चुका है। नो वेरी नाइस, एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग गर्ल। मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर भी हूँ, बहुत सारी चीजें भी मैं आपसे जानी। सो थैंक यू सो मच प्रतीक्षा। सो प्रतीक्षा को ऐसे ही इंस्पायर करिए, टैलेंट बहुत भर भर के प्रतीक्षा में। तो आपको डांसिंग वांसिंग या फिर ओनली मॉडलिंग, डांस में भी कुछ थोड़ा कीड़ा है आपके अंदर? डांसिंग ऐसे देखने में अच्छा लगता है, फिर जब करना पड़ता है बेड से निकल के या सोफा से उतर के, फिर तो हम बोलते हैं नहीं, रहने देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है। बट इतना डांस करते नहीं है फिलहाल के लिए। तो ये तो बहुत सारी अच्छी बात है। तो न्यू ईयर में क्या प्लानिंग है? अब तो न्यू ईयर से बाद सब कुछ चला गया, सब कुछ अच्छा ही हुआ। सो इसके बाद क्या प्लान है? न्यू ईयर मतलब फर्स्ट जैन के लिए यही प्लान है कि नो प्लान्स। फैमिली के साथ देना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। अगर भी कहीं बाहर जाते हैं तो फैमिली के साथ जाना है। नो आउटडोर प्लान्स। और उसके बाद न्यू ईयर में देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो कुछ प्लानिंग है नहीं। और न्यू ईयर का ऐसा है कि थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ये सब साइड में, तो साइड में थोड़ा प्रायोरिटी देंगे पढ़ाई को थोड़ा। अभी स्टडीज मतलब थोड़ा सा कम हो गया, उसीलिए ये सारे कंटेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर लिए, फिर विन भी कर लिए, तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर भी नहीं हुआ, लेकिन अब इसके बाद जरूर पड़ेगा पढ़ाई का प्रेशर। सो ये तो या सही बात है। एग्जैक्ट। तो रखना है तो, जैसे कि आप इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट हो, सो उसमें कुछ करियर करने का इरादा है? मतलब कुछ सोची हो? ये तो मेरे को पता चल गया, पढ़ाई में कुछ एजुकेशनल में कुछ करने का मन है। क्या होता है ना, लाइक हम लोग इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हम लोग ये फेस करते हैं कि इंग्लिश ऑनर्स ले रहे हैं तो हम लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, मतलब सारा वर्ड्स हमें आना चाहिए। और मतलब हम कोई गलती कर ही नहीं सकते इंग्लिश बोलने के टाइम। मतलब हम लोग तो पूरा कंप्यूटराइज्ड है। इंग्लिश ऑनर्स ले रहे हैं मतलब हम लोग पूरा 100% होने चाहिए। अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता, अरे क्या इंग्लिश ऑनर्स लिए हो। अगर इंग्लिश कहीं पे बोलने पे स्लो हो जाते, अरे क्या इंग्लिश ऑनर्स लिए हो। वो होता है। तो मैं क्लियर कर दूं, इंग्लिश ऑनर्स में ये नहीं होता। इंग्लिश ऑनर्स में हम लोग को वर्ड्स नहीं रखने पड़ते, हम लोग को बोलना नहीं सिखाया जाता। हम लोग क्या है कि लिटरेचर पार्ट में जिसको पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे मैं बोलती हूँ मुझे स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो स्टोरी का थोड़ा एलेबोरेटेड पार्ट है ये। उसमें हम लोग को पोएम वगैरह, पोएम हो गया, फिर अपना नोवेल हो गया, ड्रामा वगैरह, जहाँ जो भी है लिटरेचर पार्ट जितना भी है वो पढ़ना रहता है। जिसको मतलब सबका अलग चॉइस होता है। किसी को ज्यादा प्रैक्टिकल पसंद आता है, किसी को ज्यादा थियोट्रिकल पसंद आता है, किसी को लिटरेचर पसंद आता है, तो वो डिपेंड करता है चॉइसेस पे। तो यहाँ पे जितने जन भी देख रहे हैं, अगर उनको
इंग्लिश ऑनर्स को लेके कोई भी मिसकॉन्सेप्शन है तो उसको दूर करे। और रहा बात इंग्लिश में करियर करने का, सो लाइक ये भी ऐसा ही लोग सोचते हैं कि इंग्लिश ऑनर्स है तो टीचर ही बनेगी जाके आगे। ऐसा नहीं है, इंग्लिश में भी बहुत सारे स्कोप है। अभी मैं सकते हो। बोलूंगी तो फिर सबको, या तो सबको बोर लगेगा। तो ऑब्वियस है कि मैं अपना ये मॉडलिंग जो भी है ये मेरा पैशन है, इसको मेरे को करियर नहीं करना है। तो एकेडमिक्स में ही मेरे को आगे जाना है। वही जो भी मेरा मतलब फर्दर प्रोफेशन रहेगा वो एकेडमिक्स की बेसिस पे ही रहेगा। ओके, वेरी नाइस। तो बहुत सारी चीजें आपसे जानने को मिला, बहुत सारी चीजें आप शेयर भी किए। सो नाइस प्रतीक्षा। सो एनीथिंग यू वांट टू से टू आवर व्यूअर्स बिफोर गोइंग? अभी हम लोग लाइव को एंड कन्वर्सेशन हो गया, बहुत सारी चीजें भी हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किए, एंड आई होप कि फिर से हम लोग ऐसा एक लाइव सेशन करेंगे और फिर से हम लोग इंटरेक्शंस करेंगे। तो एनीथिंग? हाँ श्योर। लाइक मैं ये जनरलाइज करके बोलती हूँ, लाइक मेरे फील्ड के लिए नहीं, जनरलाइज करके बोलती हूँ। मेरा एम था कि मुझे मिस इंडिया में जाना है। तो फिलहाल मेरे भी फर्दर कुछ प्लान्स है, लाइक मुझे वो सब अचीव करने हैं। तो एक क्या चीज होता है ना, पेशेंस। वो पेशेंस कोई कोई हार जाता है तो बीच में वो बोलेंगे लाइक दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, वैसे नहीं होता है। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रात रात भर जागने भी पड़ेंगे, अपना जो सोशल मीडिया है उसको भी बंद करना पड़ेगा। फिर पढ़ाई के साथ भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। फिर तो वो है कि मतलब जो भी फील्ड में आप जाओ तो उस फील्ड में अपना 100% दो। पेशेंस रखो, अगर अभी नहीं तो कभी ना कभी तो सक्सेस हो गई, ये मैं अश्योर कर सकती हूँ। और ये हो गया थोड़ा ज्ञान की बात। अब आते हैं थोड़ा न्यू ईयर विशेस में कि अ, दूसरों को मत देखिए, आपको नेगेटिव कमेंट मिलेंगे। आप पॉजिटिव पे फोकस करिए, जो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं उनसे आप दूर रहिए। खुद का बेस्ट वर्जन देखिए, अपना कंपटीशन खुद को ही मानिए। दूसरा कोई आपका कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। सब कोई अपने वे में बेस्ट है। खुद कैसे एक बेटर इंसान बने वो सोचिए। और पैसा सब कुछ नहीं होता। लाइक वो रिस्पेक्ट, वो फेम, वो नेम, वो पैसे से बहुत बड़ा होता है। सो जो लोग भी लाइक मनी ओरिएंटेड है, जिनका थिंकिंग, उनको मैं बोलूंगी लाइक आप रिस्पेक्ट अर्न करिए, दूसरों को रिस्पेक्ट करिए, दूसरों को प्यार दीजिए, आपको बदले में वही मिलेगा। दैट्स ऑल। और आप जैसे हैं वैसे रहिए, आपको दूसरों के लिए खुद को चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। सो इन एडवांस सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड अ सेफ न्यू ईयर। यस एग्जैक्टली, सेफ न्यू ईयर। सेफली आप लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट कीजिए, एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि अगला जो अभी साल आने वाला है 2021 वो भी द बेस्ट होना चाहिए। जितना भी इवेंट्स हम लोग का मिस हुआ है इस साल, ईयर में थोड़ा सा अच्छे से होना चाहिए। हाँ, प्रिकॉशंस के साथ होना चाहिए, सेफली होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। बिकॉज आगरा में इस बार शोज बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ है, कोई भी शोज नहीं हुआ है। तो टैलेंटेड है जो कि न्यू कमर्स है, वो लोग भी शोकेस नहीं कर पाए, वो लोग घर में रह के सोशल मीडिया के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट किए, देन जाके आप वहां पर फिनाले रिप्रेजेंट किए इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो यही चीज है, सोशल मीडिया भी एक ऐसी चीज है जहाँ पर अपना टैलेंट दिखा सकते हो, अपने बारे में बोल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक मौका के लिए वेट करो कि वो आपके पास आएगा। it's better to create it. So I always believe in that, rather than waiting for the scope to come towards you, we should create it first. Then we will see what will be. So very nice, Pratiksha. Nice to talk with you, and we have a lovely conversation. So lastly, I would like to ask you what you like about the sessions, and say something about the sessions, today's sessions. द बेस्ट पार्ट इज दैट कि मेरे को ना एक चांस मिलता है, लाइक जो भी मन में है, जो लाइक मेरे थॉट्स है, जो मेरे ओपिनियंस है, दैट आई गेट टू शेयर। फिर क्या है कि भले ही 10 जन देख रहे हो या 100 जन देख रहे हो, वो मैटर नहीं करता। जितने जन भी देख रहे हो, अगर उनमें से कोई एक या दो भी उसको अप्लाई करते हैं अपने रियल लाइफ में, वो ज्यादा बड़ा बात है। सो और सोशल मीडिया ऐसा है ना, लाइक कोई पेपर नहीं पढ़ेगा लेकिन ये जरूर देखेंगे कोई टीवी नहीं देखेगा लेकिन ये जरूर देखेंगे। सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जो भी है मतलब वही ना, कि जो भी सोचते हो, जो आप चाहते हो, जो आप कन्फेस करना चाहते हो, कन्वे करना चाहते हो दूसरों को, वो आप ओपनली कर सकते हो।
और लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बट एट द सेम टाइम लोग हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, एंड वो लोग आपको फॉलो भी करेंगे। तो बस यही बेस्ट पार्ट लगता है लाइव सेशन का। एग्जैक्टली सबसे पहली बात है कि दूसरों को एनकरेज करो, उनको अप्रिशिएट करो, समथिंग गुड फॉर देम एंड यू विल फील वेरी गुड, लाइक यू फील राइट समथिंग गुड फॉर एनीवन ना, देन यू विल आल्सो फील वेरी गुड। वही चीज होना चाहिए ना, किसी के बारे में ऐसा लिखना कि ऐसा है वैसा है, वैसा कुछ लिखने से ना क्या होता है ना, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप किसी के बारे में अच्छे लिखो ना, तो आपको भी वैसा कुछ अच्छा फीलिंग्स आता है कि नहीं उसको अच्छे, दूसरे के मुंह पे स्माइल करवाने से ना आपको खुद को भी एक अच्छी सा फीलिंग आता है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीजें आपने शेयर की प्रतीक्षा। सो आई थिंक हम लोग और एक बार मीट करेंगे और एक सेशन में करेंगे। तो ये सेशन फिर से करके कैसा लगा? बहुत अच्छा ऑलरेडी लगा आपके साथ जब भी मिलने का मौका मिलता हो तो अच्छा ही होता है। वो सेशन में हो या फिजिकली मीट हो। आज का मौका था, लेकिन लास्ट टाइम जो कहता है वो ग्लोरी क्वीन विन करने के बाद, इस बार जो सेशन वो मिस इंडिया वाला क्राउन पहनने के बाद। सो कैन यू प्लीज वेयर योर क्राउन नाउ फॉर फ्यू मिनट्स, कैन यू? श्योर क्योंकि श्योर श्योर। कुछ लोग देखना भी चाहेंगे कि हमारी प्रतीक्षा क्राउन में कैसी दिखती है। एवरीवन जॉइन टुडे सेशंस, एंड आज जो कन्वर्सेशन हुआ काफी व्यूअर्स हमें मिले, काफी व्यूअर्स कन्वर्सेशन भी मिला। सो प्रतीक्षा इज नाउ wearing the crown. Oh, it's very heavy. So here is my crown. The princess. So let's take a selfie right now, so that I would give your pic on my status. Yeah, wow, great. That's the So, hey, Pratiksha. One second. It was amazing. It was mind blowing. So जाने से पहले दूसरों का टेक्स्ट भी देखते थे, बिकॉज हम लोग ने उनके साथ तो कन्वर्सेशन नहीं किए हैं. So good bye. Wow, great. Crown is like awesome, lovely. Congrats. So many of Pratiksha and so many love for Pratiksha. So thank you every one of you, those who have given the lovable love for us, and especially for Pratiksha that she has represented Odisha in Kolkata, and she has won a wonderful title, that is Miss India title, and she is aspiring others also to participate in this type of contest and just showcase the talent. Somebody has written pride of Rourkela. Yes, exactly, she is the pride of Rourkela, and lots of blessing from my side and from also from our college, because you are belong to my college, that is our college, GSCR college, and proud for our college also, and proud for our Odisha also. And yes, you are a pride for your parents also, because that they have given you a achieve lots of things in your life. So very nice, Pratisha. So keep achieving, keep motivating others also, and keep inspiring others also. So lastly, you say something and we will end this. Say something. Thank you and so we will much. I can't thank enough to each one of you for your lovely wishes, for your support throughout this year, from the starting till the ending. Okay, we have got 2 to 3 days more, but still, for everything, I can't thank you all enough. And keep making these sessions, keep taking such sessions. Like all these are so inspiring, and we get to learn a lot of things from each one of us, not from me, but yeah, from all of them. We get to learn different things. Besides that, to those who are watching us, thank you for taking time and giving to us. So yes, exactly. have a safe and happy, prosperous New Year in advance. Exactly. From my side also, happy new year to everyone. Enjoy your new year this year very nicely, because ये year ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, but hope so Yeah. कि आने वाला बहुत ज़्यादा अच्छा हो, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए भी ज़्यादा अच्छा हो. और yes,
हम दोनों के लिए भी अच्छा हो कि हम लोग ऐसे ही बॉन्डिंग हमारे साथ और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। प्रतीक्षा और आप Sure. ऐसे ही एंड आई होप कल हम लोग फिर से कॉलेज में मिल जाए, राइट? और बहुत करेंगे। Sure. आई होप सो। अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज आना, हम लोग मिलेंगे। और और ऐसा कुछ अगर हम लोग को स्कोप मिलता है, अगर लोग पूछते हैं, कुछ डीएम्स करते हैं, तो हम लोग उनके लिए भी करेंगे लाइव सेशन में, सो दैट उनको भी कुछ नॉलेज मिले, अगर उनको मॉडलिंग में पार्टिसिपेट करने का मन है तो। सो हम लोग वो डिसाइड करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज अबाउट मॉडलिंग एंड इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट एनीवन फ्रॉम दिस व्यूअर्स, तो प्लीज डीएम Pratiksha. Please follow Pratiksha. She will give you all the details about her journey and about modeling career and everything, and you will got to know and you will participate. So thank you so much, Pratiksha. Love you too, and thank you for joining and making this live session success. And the best part is the network. Thank you so much. The pleasure is There is all no mine. between us very nicely. So thank you so much. So bye bye. Take care. Happy New Year. Bye. Take care, everyone. Bye bye. Bye. So thank you so much everyone, those who have joined today's sessions and making this live session success. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आप सभी से बातचीत करके। And as I have told yesterday that प्रतीक्षा को मैं लाइव लाऊंगी, and प्रतीक्षा को मैं लाइव लेके भी आई, आप सभी से बातचीत भी करा, जिन लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा लवेबल टेक्स्ट हमें भेजा, उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड ड्यू टू दिस कन्वर्सेशन, बिकॉज प्रतीक्षा के बारे में हमें बहुत कुछ जानना भी था, वो कैसे स्टार्टिंग के थे, और आप लोग को भी कुछ हैं जो लोग मॉडलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जान के उन लोगों को आगे बढ़ना है। तो उसी चीज के बारे में हम लोग कन्वर्सेशन किए, कैसा था। एंड आई होप सो कि उनको फिर से मैं एक सेशन में लाऊंगी जिसमें हम दोनों मिलके फन करेंगे और आप सभी से प्यारे प्यारे बातें भी करेंगे। आज तो ये था इंटरेक्शन के बारे में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड जस्ट स्टे ट्यून विद माय पेज, दैट इज मोनालिसा, and just stay tuned with Insta live session with celebrity, and I will be bringing another live sessions with another celebrity, as you will see, as you have already saw Roadies, all those contestants, that is Xerxes and Salman, Nishtha, Radha Krishna, so all those were live and you have already watched, and if I get a chance I will bring others also. And if you want to see your favorite celebrity on my sessions, please DM me, please text me or comment me on this session so that I can bring him. I will try to bring him. So that's it for everyone. So thank you so much for joining and making it success. Love you too. So stay tuned with my page. Thank you. Bye bye, Mona. Thank you so much. Bye bye.